அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடல்ஸ் இந்தி கைட்ஸ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडल्स हिंदी गाइड्स प्रस्तुति कற்க கசடர कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आप जो बराबर सहयोग दे रहे हैं उसके लिए हार्दिक धन्यवाद. आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में और रिश्तेदारों में शेयर करें और बांटें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले. और कमेंट में अपना विचार आप कृपया लिख भेजें. और आज आपकी अनुमति से मैं अपना सेवा भार शुरू करना चाहता हूँ. आज हमारे कवि हैं रहीम. रहीम के बारे में मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ. ரஹீமை பற்றி நான் ஏற்கனவே பல கடந்த பதிவுகளிலே நான் சொல்லியிருக்கின்றேன். மீண்டும் அவருடைய சஸ்ஸை ரஹீம் சஸ்ஸை என்ற நூலிலிருந்து சில பாக்களை நாம் இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கின்றோம். முதலாவதாக மத்தத்து மத்தத்து மாக்கன் ரகத்த दही मही बिलगाय. मतत मतत माकन रहत दही मही बिलगाय. रहीमन सोई मीत है जो वीर परे ठहराए. रहीमन सोई मीत है जो वीर परे ठहराए. यहाँ पर जो सच्चा मित्र है उसके बारे में बता रहे हैं. ये छोटी कहानी है, आपने सुना होगा. ஒரு சிறு கதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். 2 நண்பர்கள் ஒரு நாள் காட்டு வழியாக சென்று கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது அந்த காட்டு வழியே ஒரு கரடி வந்தது. அந்த கரடியானது மனிதர்களை சாப்பிட்டுவிடும். அதை பார்த்து பயந்து என்ன செய்தார்கள்? ஒருவன் மரத்தின் மேல் ஏறி உச்சாணி கிளையில் அமர்ந்து கொண்டான். மற்றவனுக்கு மரத்தின் மேல் ஏற தெரியாது. ஆகவே அவன் தன்னை காத்து கொள்ள ஒரு உபாயம் செய்தான். தான் இறந்தவனைப் போல கீழே படுத்துக்கொண்டான். மூச்சை பிடித்துக்கொண்டு தரையிலே படுத்துக்கொண்டான். பெரும்பாலும் மிருகங்கள் ஏற்கனவே இறந்த உடலை சாப்பிடாது. உயிரோடு தான் சென்று வேட்டையாடிய பொருட்களை மட்டுமே உண்ணும் அந்த பழக்கமுடையவை மிருகங்கள். சிங்கம் அப்படித்தான். ஆகவே அந்த கரடி வந்தது, கீழே படுத்திருப்பவனை பார்த்தது, அவனை முகர்ந்து பார்த்தது. மூச்சு இல்லை என்று அறிந்ததும் வந்த வழியே திரும்பி சென்று விட்டது. ஏனென்றால் அது உயிரற்ற உடல் என்பதை அறிந்து அது தான் வந்த வழியே திரும்பி சென்று விட்டது. இந்த காட்சிகளை மேலே அமர்ந்திருந்த நண்பன் பார்த்தான். கரடி போன பிறகு இனி ஆபத்து இல்லை என்று தெரிந்த உடனே கீழே இறங்கி வந்தான். இறங்கி வந்து மூச்சை அடக்கி கொண்டு படுத்திருந்த நண்பனை எழுப்பினான். அவனும் எழுந்தான். எழுந்து கேட்ட பொழுது அவன் கேட்டான், தன் நண்பரா, கரடி உன்னுடைய காதிலே இதோ சொல்லிற்றே, என்ன சொல்லிற்று என்று கேட்ட பொழுது அப்பொழுது நண்பன் சொன்னானாம், ஆபத்து காலத்திலே எவன் உனக்கு உதவவில்லையோ நீ அவனை நம்பாதே என்று என்னிடம் கரடி சொன்னது. ஆகவே ஆபத்து வரும்பொழுது என்னை விட்டு தன்னை மட்டும் காப்பாற்றிக்கொள்ள நீ மேலே போய்விட்டாயே, என்னை அம்போய்ந்து விட்டு விட்டாயே. ஆகவே நீ உண்மையான நண்பன் அல்ல
என்று சொல்லிவிட்டு, இன்று முதல் உன் நட்பு இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு அவன் திரும்பிச் சென்று விட்டான். இது ஒரு கதை. இது சிறிய கதையாக இருந்தாலும் நமக்கு கற்பிக்கின்ற போ போதனை என்னவென்றால், துன்பம் வரும் பொழுது உதவாத நண்பனை, மனிதரை சேர்த்துக் கொள்ளாதே. நான் மீண்டும் கவியரசரை அழைக்கின்றேன். வாழும் நாளிலே கூட்டம் கூட்டமாய் வந்து சேர்கிறார் பாரடா, கை வறண்ட வீட்டிலே உடைந்த பானையை மதித்து வந்தவர் யாரடா, பணத்தின் மீதுதான் பக்தி என்ற பின் வந்த பாசமே ஏனடா, பதைக்கும் நெஞ்சினை அணைக்கும் யாவரும் அண்ணன் தம்பிகள் தானடா. அதுபோல் நமக்கு ஆபத்து வருகின்ற பொழுது யார் நம்மை அழைக்கிறார்களோ அவர்களே நமக்கு உற்றவர்கள், நண்பர்கள் என்ற கருத்திலே அது சொல்லப்பட்டது. உடுக்க இழந்தவன் கை போல அங்கே இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு என்று வள்ளுவர் கூறியிருக்கின்றார். அதே போல சேரிடம் அறிந்து சேர் என்ற பழமொழியும் உண்டு, நீங்கள்லாம் கேட்டிருப்பீர்கள். இங்கே கவிஞர் சொல்கிறார், वो बालू जो है वो दोनों दोस्त जंगल की वो जा रहे थे, रास्ते में वे एक भालू से मिले, रीछ से मिले। उसको देखते ही एक दोस्त पेड़ के ऊपर चढ़ के चिपके बैठ गया, दूसरा पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, इसलिए उसने क्या किया, एक उपाय किया, मुर्दे की तरह ज़मीन पर लेट गया, सांस रोक कर पड़े रहा। भालू ने आकर देखा तो ये मरा हुआ है, तो मरा हुआ जो है उसे मैं नहीं खा सकता, ये सोचते हुए वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद ऊपर वाला नीचे उतरा और उसने पूछा, क्या भालू ने तुम्हारे कानों में कुछ कहा ना? क्या कहा था बताओ। दोस्त ने कहा, मुसीबत के समय जो हमारा साथ नहीं देता वो सच्चा मित्र नहीं है, इसलिए आज से तुम और मैं दोनों अलग हो जाएंगे, तुम मेरा सच्चा मित्र नहीं है, तुम मुझसे अलग हो जाओ। इस प्रकार दोनों मित्र बिछुड़ गए। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन इसकी नीति बहुत बड़ी है। जो विपत्ति के समय हमारा साथ नहीं देता उसका साथ छोड़ना ही अच्छा होता है। यही इस दोहे की नीति है। यहाँ पर रहीम की उक्ति एक अलग ढंग की है। वे कहते हैं, मतत मतत माकन रखत दही मही बिल गाय, माँ दही को मतनी से मत्ती है। आपने देखा होगा घर घर में होता है, माँ मतनी से दही को मत्ती है या मत्ती ऐसी करती है, माँ मत्ती है। तो मत्ते मत्ते उस दही पर विपत्ति पढ़ते पढ़ते, मत रूपी विपत्ति पढ़ते पढ़ते उसमें से दही में से जो मिला हुआ मक्खन है वो उससे अलग हो जाता है। मतनी रूपी जो मुसीबत दही को मिलती है, दही में मिला हुआ वो मक्खन अलग हो जाता है। मतत मतत माखन रहत, दही में रगत माखन, मक्खन रगत है, दही में रगत माखन में बिल गाय अलग हो जाता है, दही में से अलग हो जाता है। उस प्रकार रहीमन सोई सांचे मित है, अवंदान उम्या नंबन जो भीर परे टकराए। भीर परे ना मुसीबत के समय टकराए हमारे साथ रहता है। जो मुसीबत में हमारे साथ रहता है वही सच्चा दोस्त है, वही सच्चा मित्र है। इस प्रकार दही और मक्खन एक साथ होते हैं,
मतने से वो मक्खन दही से अलग हो जाता है। इस प्रकार मुसीबत के समय हमसे अलग हो जाने वाला मित्र सच्चा मित्र नहीं है। उससे उस पर हमें भरोसा नहीं रखनी चाहिए। उस पर विश्वास मत करो। यही इस दोहे का आशय है। मतत मतत माखन रहत, दही मही बिल गाय, रहीमन सोई सांचे मित्र है, जो वीर परे टकराए। अब दूसरा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख जतन करे कोई। एक बात के लिए एक घड़ा है। घड़ा जो हम अपने बाहर से, हाट से, बाजार से खरीद कर लाते हैं। लेकिन वो घड़ा हाथ से फिसल जाए तो क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा और घड़ा फूट जाएगा। फूटने के बाद उसको जोड़ना क्या आसान काम है? वो काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसी प्रकार हम दूध वाले से दूध खरीद कर लाए, माँ उसको चूल्हे पर लगाती है और उसे गर्म करती है। किसके लिए? चाय बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए। अगर वो दूध फट जाए तो क्या होगा? क्या उससे माखन निकलेगा? फाटे हुए दूध से मक्खन निकलेगा? माखन निकलेगा? नहीं। वो फूटा हुआ घड़ा क्या फिर जुड़ेगा? नहीं। इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। उसको फेंक देना चाहिए। जो घड़ा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, उसको फेंक देना चाहिए। उसी प्रकार ये दूध जो है फट गया, पालान तिरुंदी विटது किट्टु போயிட்டது, उस दूध को हमें नीचे फेंक देना ही उचित है। उसको हम किसी काम के लिए उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो हमारी बात बिगड़ गई, हमने जो किसी को वादा किया तो निभाना ही पड़ेगा। एक गाना है, जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, बात एक होनी चाहिए। मेरे एक दोस्त से, पंजाबी दोस्त हैं, वे जरा क्या है, कुछ मस्करे जैसे हैं, हमेशा हमें हंसाते रहेंगे। मैं उनके गांव भी गया हूँ। वो पंजाबी दोस्त ब्रिजपाल सिंह राठौर उसका नाम है, ब्रिजपाल सिंह राठौर। वो सिख है। वो बराबर हमसे हंसी मजाक में करते रहेंगे, जिसका बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। मैं इसको देख करके मैं उससे पूछूंगा, अरे भाई ऐसा क्यों गाती हो? नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे पंजाब में गांव-गांव में बोली जाने वाली कहावत है, मुहावरा है, लोकोक्ति है। तो मैं चुप हो गया। हाँ, मैं हँसी मजाक समझकर चुप हो गया। इस प्रकार बात एक होनी चाहिए। उसका उदाहरण है सत्य हरिश्चंद्र। उसने अपनी बात निभाने के लिए अपना सब कुछ त्यागा, राज्यभार त्यागा और पत्नी को त्यागा, परिवार को त्यागा, बेटे को त्यागा, अपने को भी बेच डाला। किसके लिए? बात को निभाने के लिए। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये का मुहावरा बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे। உயிரே போனாலும் வாக்கு தவறக்கூடாது, சொல்வன்மை சொல்வன்மை சொல் என்பது ஒன்றுதான், சொன்ன சொல் தவறக்கூடாது என்பது நம் நாட்டிலே போற்றப்படுகின்ற, வழங்கப்படுகின்ற மிக சிறந்த ஒரு சொல்லடையாகும். ஆக இங்கே பிகரி பாத் பனை நெய்யும், அதுபோல் ஒரு வார்த்தையை நாம் கொடுத்து விட்டால் அந்த வார்த்தை நாம்
செய்யாமல் விட்டுவிட்டால் பிகரி பாத் பிகட் கயி, அந்த விஷயம் விடப்பட்டு விட்டால் கெட்டு போய்விட்டால் சொல்ல போகிறான். பிகட் கயி तो बने नहीं, மீண்டும் உருவாக்க முடியாது. ये कांच का टुकड़ा और கண்ணாடி இருக்கிறது, एक आईना है, नीचे डालने से वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा. ஒரு கண்ணாடி, அதை கீழே போட்டு விட்டால் உடைந்து விடும். அதை எடுத்து மீண்டும் நாம் அதை முகம் பார்க்க முடியாது. அதுபோல் நாம் கொடுத்த வாக்கு தவறிவிட்டால் அது மீண்டும் ஒன்று சேராது. லாக் ஜத்தன் கரே கோய், லட்சம் முறை முயற்சி செய்தாலும் முடியாது. ஜத்தன் கரே கோஷிஷ் கரே பிரயத்ன கரே, லட்சம் முறை முயன்றாலும் கூட முறிந்து போன வார்த்தையை மீண்டும் ஒட்டி வைக்க முடியாது. உடைந்து போன கண்ணாடியை மீண்டும் சேர்க்க முடியாது. உடைந்து போன பானையை மீண்டும் ஒட்ட வைக்க முடியாது. திரிந்து போன பாலை மறுபடியும் அதை பயன்படுத்த முடியாது. அதுபோல வாக்கு நாம் தவறக்கூடாது. प्राण जाए पर वचन न जाए, ये तो प्रसिद्ध कहावत है, आप जानते होंगे. उसी प्रकार रहीम कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख जतन करे कोई लाख कोशिश करे फिर भी बिगड़ा हुआ जो है वो दोबारा नहीं बनेगा. रहीम कहते हैं, पाटे दूध को मते ना माखन होई, திரிந்து போன பாலை கடைந்தாலும் அதிலே வெண்ணெய் நமக்கு வராது. அதுபோல நாம் நம்முடைய சொல் ஒன்றாக வாழ வேண்டும். नंबर सलवार दोस्त कहेगा जिसका बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं. जरा जो अश्लील है फिर भी क्या है, सोचने को मजबूर करता है. तीसरा है, रहीमन विपदा तू भली जो तोरे दिन होय. रहीमन विपदा तू भली जो तोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में, हित अनहित या जगत में जानी परत है सब कोई. இப்பதா முசீபத் ஆத்தி है, வாழ்க்கையிலே ஆபத்துக்கள் வரும், துன்பங்கள் வரும், दुखम वरुण, श्रमங்கள் वरुण, कठिनाइयाँ जीवन में आती ही रहती हैं. उससे दुखी होने से वे बढ़ेंगे ही, घटेगी नहीं. சரி, ரோட்டில் போய் கொண்டிருக்கிறோம், ஒரு பாதை மேடாக இருக்கிறது, தொடர்ந்து மேடாக இருக்குமா? சிறிதோறும் மேடாக இருக்கும், அப்புறம் மீண்டும் பள்ளமாகிடும் அல்லவா? சரி, ஒரேடியாக பள்ளமாகவே இருக்குமா? அப்படி இருக்காது. மேடு பள்ளம் என்பது வாழ்க்கையிலே சகஜம்தான். ஆகவே அந்த மேடு பள்ளம் வரும்போது நாம் எதையும் தாங்கும் இதயம் கொண்டு வாழ வேண்டும். வாழ்க்கையிலே இன்பமும் வரலாம், துன்பம் வரலாம். வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும், கவிதாசன் பாடுவார். வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும், வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும். வந்த துன்பம் எதுவென்றாலும் வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை. வந்த துன்பம் எதுவென்றாலும் வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை. எதையும் தாங்கும் இதயம் இருந்தால் இறுதி வரையிலும் அமைதி இருக்கும் என்று பாடுவார். அதுபோல் இங்கே ரஹீம் कहते हैं, விபதா தூ பலி, துன்பமே இன்னலே கஷ்டங்களே நீ நல்லவள்தான் பலி, நான் உன்னை வரவேற்கிறேன், நான் உன்னை வேண்டாமல் இருக்கவில்லை. ஏனென்றால் जो थोड़े दिन होई बराबर दुख नहीं होता, थोड़े दिन होई, थोड़े दिनों के लिए होता है. सूत्रानंद पंत जी कहते हैं, अपने पढ़ा होगा, अविरत सुख है दुख है उत्पीड़न, अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख रे उत्पीड़न. டெய்லி நம்ம அல்வா சாப்பிட்டு முடியுமா? டெய்லி ஜிலேபி சாப்பிட முடியுமா? முடியாது அல்லவா? अविरत सुख भी उत्पीड़न, अविरत दुख भी उत्पीड़न, सुख दुख की निशा दिवा में, सुख दुख की निशा दिवा में सोता जगता जग जीवन என்று பாடியிருப்பார். सुख दुख की निशा दिवा में सोता रहता जग जीवन, ये सूत्रानंद पंत की उक्ति है. सुख दिवा है, रोशनी है, दुख निशा है, रात है. ये दोनों बार बार आते हैं ना, दिन में रात और दिन बार बार आते हैं ना. उसी प्रकार रात में सोता है
दिन में जागता है, सोता जगता जग जीवन। उस प्रकार ये विपदा जो है, मुसीबत जो है, जो थोड़े दिन के लिए होता है, थोड़े दिन हो ही, लेकिन उस विपदा में, उस विपदा के समय में अभी मैंने कहा था, பதைக்கும் நெஞ்சினை அணைக்கும் யாவரும் அண்ணன் தம்பிகள் தானடா। जो मुसीबत के समय हमारा साथ देते हैं वे ही सच्चे मित्र होते। पहले हमने पढ़ा, अभी वही वही आता है, हित अनहित या जगत में, इस दुनिया में हमारी भलाई चाहने वाला कौन है, हमारी भलाई ना चाहने वाला कौन है, ये हमें मुसीबत के समय में हमें ही मालूम पड़ता है। एक मैंने कहा था करणी कदे बाल कहानी, उसमें वही नीति है, जो मुसीबत के समय हमारा साथ नहीं देता वो हमारा मित्र नहीं होता। यहाँ पर विपदा को वे रहीम जी भला कहते हैं, रहीमन विपदा तू भली, जो थोड़े दिन होए तो बराबर नहीं, थोड़े दिन के लिए तो दुख होता है, उसके बाद बदल जाता है। सुख भी बदलता है और दुख भी बदलता है, सब वो कोई भी स्थायी नहीं है, दोनों अस्थायी हैं। இரண்டுமே நிலையற்றவை, இன்பமும் நிலையானதல்ல, துன்பமும் நிலையானதல்ல, மாறி மாறி வரக்கூடியது। ஆக நான் ஒரு ஆட்டோவிலே படித்தேன், வசதி வந்ததும் ஆடாதே, வறுமை வந்ததும் வாடாதே। வசதி வந்ததும் ஆடாதே, வறுமை வந்ததும் வாடாதே। ஆக வசதி வறுமை இரண்டையும் சமமாக பார்த்துக்கொள், வசதி வறுமை இரண்டையும் சமமாக பார்த்துக்கொள்। வசதி வரும்போது ஆடுவதும் வறுமை வரும்போது வாடுவதும் தவறு, இரண்டையும் சமமாக கொடுவிட்டால், பேலன்ஸ் பண்ணிக்கொண்டே போய்விட்டால் வாழ்க்கையில் நமக்கு துன்பமே இருக்காது என்கிறார்। जैसे रहीमन विपदा तू भली, जो थोड़े दिन होए, लॉन्ग टाइम नहीं है, बराबर नहीं रहता, वो थोड़े समय के लिए होता है। हित अनहित या जगत में, इस दुनिया में हित हमारी भलाई चाहने वाला कौन है, अनहित बुराई चाहने वाला कौन है, जानी परत है सबको सब। उसी समय हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये हमारा वेल विशर है, भलाई चाहने वाला है, ये हमारी भलाई चाहने वाला नहीं है। ये बात हमें मुसीबत में ही मालूम पड़ेगी, लेकिन खुशी में सुख में नहीं। जैसे कि வாழும் நாளிலே கூட்டம் கூட்டமாய் வந்து சேர்கிறார் பாரடா, வந்து சேர்கிறார் பாரடா, தரம் வருவாங்க நம்ம, ஆனால் கை வறண்ட வீட்டிலே உடைந்த பானையை மதித்து வந்தவர் யாரடா। பணத்தின் மீதான் பக்தி என்ற பின் வந்த பாசமே ஏனடா, பதைக்கும் நெஞ்சினை அணைக்கும் யாவரும் अन्न तंबिகள் தானடா। यहाँ पर मुसीबत के समय जो हमारा साथ देता है, मुसीबत में ही हमें भले बुरे का ज्ञान होता है, हम उसको पहचान सकते हैं कौन हमारा शुभ चिंतक है, जो कौन हमारा शुभ चिंतक नहीं है, ये हमें मुसीबत के समय ही मालूम पड़ता है। इसलिए रहीम कहते हैं, विपदा ये मुसीबत तू अच्छी हो, तुम भली हो, रहीमन विपदा तू भली, जो थोड़े दिन हो, इत अनहित या जगत में जाने परत है सब कोई। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है क्षमा बड़न को चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, சிறியோர் செய்த சிறுபிழை எல்லாம் பெரியோராயின் பொறுப்பது கடனே। சிறியோர் சிறுபிழை செய்தனராயின் பெரியோராயின் பொறுப்பது கடனே। பொறுப்பது मतलब माफ़ करना, माफ़ करना महान गुण है, माफ़ करना महान गुण है। महाभारत में कृष्ण के षड्यंत्र के कारण कर्ण मृत्यु शैया पर पड़े रहता है। கண்ணனுடைய சூழ்ச்சியின் காரணமாகத்தான் கர்ணன் மரணப்படுக்கையிலே படுத்து கிடக்கிறான், அம்புப்பட்டு தேர்காலிலே கிடக்கிறான்। கிடக்கின்ற பொழுது
அவன் நிலையை கண்ட கண்ணன் மனம் வருந்துகிறான். அப்பொழுது தானே அவனிடம் வருகிறான். அவனை பார்த்து சொல்கிறான், மன்னவர் பணியேற்கும் கண்ணனும் பணி செய்ய உன்னடி பணிவானடா கருணா மன்னித்து அருள்வாயடா என்று பாடுகிறார் கவியரசர். மன்னவர் பணியேற்கும் கண்ணனும் பணி செய்ய, பஞ்சபாண்டவருடைய பணியை, அவருடைய தேரை ஓட்டுகின்ற பணியை நான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட கண்ணனாகிய நான் உன்னிடம் மன்னிப்பு வேண்டுகிறேன். கர்ணனும் அவரை மன்னித்தான். மன்னித்த காரணத்தால் அவன் உயர்ந்தவனாகிறான். மன்னிப்பவனே உயர்ந்தவனாகிறான். வீரனுடைய மன்னிப்பாகும். அதே ஒரு கோழை வந்து போர் செய்ய வேண்டாம் போடா என்று சொன்னால் அதன் பேர் மன்னிப்பல்ல, அது கோழைத்தனம். ஆகவே நாம் தாழ்ந்திருக்கும்போது எவன் நம்மை மன்னிக்கிறானோ அவன்தான் உயர்ந்தவன். அலெக்சாண்டரிடம் புருஷோத்தமன் தோற்று போகிறான் போரிலே. அலெக்சாண்டர் கேட்கிறான், புருஷோத்தமா, நான் நீ என்னிடம் தோற்றுவிட்டாய், எனக்கு அடிபணிந்து விட்டாய், நீ அடிபடுகிறாயா? நான் உன்னிடம் எப்படி நடந்து கொள்வது? तुम्हारे साथ किस प्रकार का व्यवहार करूं, गुलाम का या बराबर का? तो वो बोला, बराबरी का व्यवहार करो, क्योंकि आज मैं हार गया हूँ, कल तुम हार जाओगे। ऐसी बात नहीं कि रोज़ हर बार तुम जीतोगे। हार जीत वो तो स्वाभाविक है। इसलिए हार के समय कायरता दिखाना, जीत के समय हंसना, टटाकर हंसना, गर्व करना ये उचित नहीं है। हमें हमेशा एक ही ढंग से रहना चाहिए। हमारा मन निश्चल होना चाहिए। तुम मेरे साथ एक राजा के साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा करो। ஒரு மன்னனோடு எப்படி நடந்து கொள்வாயோ அப்படித்தான் என்னோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறான் புருஷோத்தமன். அதை பார்த்து பெருமைப்படுகிறான் அலெக்சாண்டர். அப்படியா, சரி, உன்னுடைய ஆட்சி பொறுப்பை நான் ஜெயித்த ஆட்சியை உனக்கே தருகிறேன். உன்னுடைய நேர்மை எனக்கு பிடிக்கும் என்று சொல்லி அவனை மன்னிக்கிறான். அங்குதான் அவன் மகான் ஆகிறான். யார்? அலெக்சாண்டர். அங்கே கண்ணனே மன்னிப்பு கேட்கிறான் கர்ணனை பார்த்து. ஏனென்றால் நான் செய்த சூழ்ச்சிகளின் காரணமாகத்தான் கர்ணன் வீழ்ந்தான். இல்லாவிட்டால் கர்ணனை யாராலும் வீழ்த்த முடியாது என்ற காரணத்தாலே மன்னவர் பணியேற்கும் கண்ணனும் பணி செய்ய உன்னடி பணிவானடா. ஒரு பரமாத்மா அவனை பணிகிறான் என்றால் எவ்வளோ பெரிய மகிமை அது. உன்னடி பணிவானடா கருணா मन्नित अरुवायडा इंग्रान। उस प्रकार जो माफ़ करता है वही महान होता है। माफ़ करना महान गुण है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, क्षमा में सजा से बड़ी वीरता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। क्षमा में सजा से बड़ी वीरता है। सजा देने की योग्यता रखते हुए भी, सजा देने का अधिकार रखते हुए भी जो क्षमा करता है उसकी आत्मा बलवान है। गुरु गोविंद सिंह आपको मालूम है सिख धर्म के बहुत बड़े ज्ञानी थे। गुरु नानक के बाद गुरु गोविंद सिंह, उनका कहना था क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा ही वीरों का लक्षण है, वीरों का लक्षण है, वीरों का अलंकार है, वीरों का आभूषण है। इसलिए நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய முன்னாள் முதல்வர் அண்ணாதுரை அவர்கள் சொல்வார், மறப்போம் மன்னிப்போம் என்பார்। मरप्पो मन्निपो, जो इस प्रकार जो क्षमा करता है वही महान होता है। छोटा बच्चा क्या करता है, हमारी छाती पर कूदता है, फिरता है, लात मारता है, क्या उसको दोबारा मारते हैं? क्या उसको दंड देते हैं? क्या नहीं। उसको उठा करके चूमते हैं, पुचकारते हैं, लाड प्यार करते हैं, क्योंकि वही हमें चाहिए। वो छोटा बच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। उसको माफ़ करने से ही हम महान बनेंगे। उसी में हमारी खुशी है। बच्चा लात मारता है तो उसी में हमारी खुशी है। बच्चा थूकता है तो उसी में हमारी खुशी है। इसीलिए
जहाँ पर माफ़ी होती है वहीं पर महानता होती है। जो माफ़ करता है वही महान होता है। एक बार भृगु मुनि, जो मुनि हमेशा नाराज होते थे, सब हमेशा गुस्सेलते थे, उस अकारण गुस्सा प्रकट करते थे, नाराज हो जाते, शाप देते थे। ऐसे गुस्सेल गुरु भृगु मुनि एक बार विष्णु को देखने के लिए आए। उस समय विष्णु सोए हुए थे। उनको ये मालूम नहीं था कि भृगु मुनि आए हैं, तो वैसे ही सो रहे थे। उसको देखते ही वे आग बबूला हो गए भृगु मुनि। उन्होंने कहा, क्या किया? कुछ नहीं किया। तेजी से आते हुए, सोते हुए कृष्ण की छाती पर लात मारी थी। वो लात पाकर खाकर कृष्ण ने कहा, गुरुजी माफ़ कीजिए, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? इसका आधार क्या है? माफ़ कर दिया। भृगु का अहंकार था कि देखो मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारूंगा, मुझे कौन क्या कर सकेगा, मुझे कौन रोक सकेगा। एक घमंड था उसके दिल में। उस घमंड को दबाया, दूर किया विष्णु ने। किसके द्वारा? घमंड से नहीं, घमंड का माफ़ी से, घमंड का दमन माफ़ी से किया। इसलिए माफ़ करना ही महान गुण है। यहाँ पर रहीम का कहना है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो उत्पात करते हैं, शोर मचाते हैं, नरकटीपन करते हैं, वे लोग छोटे होते हैं। जो दूसरों को सताते हैं, तंग करते हैं, वे लोग छोटे होते हैं। जो दूसरों को बचाते हैं, आपने पढ़ा होगा जीसस महात्मा ईसा मसीह ने यीशु கிறிஸ்து சொன்னார், ஒருவன் உன்னை வலது கன்னத்தை அடித்தால் உடனே அவனுக்கு இடது கன்னத்தை காட்டு, ஆனால் திருப்பி अडिकादे। कोई तुमको दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो उसका बाएं गाल दिखाओ, मगर उसको दोबारा मत मारो। ये कितनी बड़ी महानता है। ये महानता विष्णु में भी थी। उन्होंने भृगु को माफ़ कर दिया। पूछा उन्होंने, क्या भृगु मुनि जी आपके पैरों में चोट तो नहीं आई? इससे वे द्रवित हो गए और माफ़ी मांगने लगे। चले थे विष्णु का मान घटाने के लिए, लेकिन इनका मान घट गया। विष्णु का मान घटा नहीं, वो बढ़ा। इसलिए कहा, विष्णु को घटी गयो जो भृगु मारी लात। भृगु मुनि ने लात मारी थी। भृगु मुनि ने लात मारी थी। किसको? विष्णु को घटाने के लिए, उसका मान कम करने के लिए लात मारी थी। लेकिन विष्णु ने उसको माफ़ कर दिया और महान बने। इस प्रकार माफ़ी में ही महानता है। माफ़ी में ही महानता है। इसलिए क्षमा वीरस्य भूषणम, मरपोम मन्निपोम। इसलिए माफ़ करने वाला ही महान होता है, माफ़ नहीं करने वाला महान नहीं होता। ये तथ्य हमें इस दोहे से मिलता है। दोबारा एक बार मैं पढ़ाऊँगा। मतत मतत माखन रहत, दही मही बिलगाय, रहीमन सोई मीत है, जो वीर परे ठहराए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख जतन करे किन कोई, रहीमन बिगड़े दूध को, पाटे दूध को, मते ना माखन होई। रहीमन विपदा तू भली, जो तोरे दिन होई, इत अनिहित या जगत में, जानी परत है सब कोई। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, को घटी हरि को घटियो, जो भृगु मारी लात। घटी गयो मतलब अपमान करने के लिए, उसका मान कम करने के लिए। भृगु मारी लात मारिनाल इट्टी उழைத்தார்। எட்டி உழைத்தும் அவருடைய மன்னிப்பின் காரணமாக विष्णु उयर्ந்தார், भृगु मुनिवर ताड़दार। इसलिए हमें वो माफ़ी का
मंत्र पढ़ना चाहिए। इससे इन्ना செய்தாரை ஒருத்தல் அவர்நான நன்னயம் செய்துவிடல், ये குறள் है। இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் நடித்தல், அவர்நான நன்னயம் செய்துவிடல், அவர் பார்த்து வைக்கப்படும் அளவுக்கு நன்மைகள் அவருக்காக நாம் செய்ய வேண்டும். அதுவே அவருடைய தண்டனையாகும். அதுவே அவனை கொன்றும். சிலப்பதிகாரம் சொல்லும், ஊழ்வினை ஒருத்து வந்து ஊட்டும். தான் செய்த முன்வினைகள் அதுவே அவனுக்கு வந்து ஒருத்து எவனாக வந்து அவனுக்கு மறுபடியும் கொடுக்கின்றார். ஊழ்வினை ஒருத்து வந்து ஊட்டும். இதுதான் வந்து சிலப்பதிகாரத்தினுடைய முக்கியமான அந்த அந்த கருத்து, அந்த பிளாட்டே தான். ஊழ்வினை ஒருத்து வந்து ஊட்டும் என்பதுதான். அதுபோல் மன்னிப்பதே மாண்பு। महात्मा गांधी ने कहा था, क्षमा में सजा से अधिक वीरता है। सजा देने की योग्यता अधिकार रखते हुए भी जो क्षमा करता है वही उसकी आत्मा बलवान है। जैसे कि अलेक्जेंडर, ईसा मसीह, यीशु क्रिस्त, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, विष्णु, ऐसा बहुत सारे लोग हैं। ये हमारे लिए आदर्श बने हैं। हमें उन लोगों का आदर्श अपने जीवन में उतारना चाहिए और समाज में सभ्य बनकर, सुशील बनकर, महान बनकर रहना चाहिए। ये संदेश हमें इन लोगों के द्वारा मिलता है। आशा है कि हम लोग इसका पालन करेंगे और सच्चरित्रवान बनेंगे, सच्चे भारतीय नागरिक कहलाएंगे। इस स्थिति के साथ मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करना चाहता हूँ। कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलना चाहता हूँ। இப்படி நாம் மகான்களுடைய அறிவுரை ஏற்றுக்கொண்டு அதை நம் வாழ்க்கையில் நாம் கடைப்பிடித்தால் நாம் உயர்ந்த மக்களாக, ஒழுக்கமான மக்களாக, மகான்களாக, சிறந்த குடிமக்களாக வாழ்வோம் என்று கூறி இன்றைய பதிவை நிறைவு செய்கின்றேன். நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க விடைகிறேன். அதுவரைக்கும் अनुमति கோருவது விடைபெறுவது தங்களின் आर सुंदरराजन। आपका आर सुंदरराजन। धन्यवाद, नंरी, धन्यवाद, नंरी, धन्यवाद, नंरी। जय हिंद।